వచ్చేసినందుకు దాని ముందుగా మనందరం ఎక్కువ సంఖ్యలో హాజరయ్యి మన ప్రెసిడెంట్ గారి అండగా నిలబడి మీ అందరూ కృతజ్ఞతలండి. అలాగే కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు మన ఎస్సీ సోదరుల్ని ఆదుకోవటం, అలాగే మన గురించి మన ప్రెసిడెంట్ గారు ఒక వారం రోజులు ఒక సెషన్ పెట్టారు లోన్స్ గురించి. దాని కూడా తక్కువ మంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. దాని కూడా ఎక్కువ మంది రెస్పాండ్ అయ్యి ఏదైతే మన జాతి అభివృద్ధి ఉన్నామో ఆ అభివృద్ధిని మనం అందపుచ్చుకోవాలి. మనకి ఇలాంటి అధ్యక్షుల వారు దొరకడం మన అదృష్టం. ఏ మోర్చాకి లేనివంటే ఇది ఇప్పుడు మన మోర్చాకు వచ్చింది. మన ఇస్కా సునీల్ గారు ఉండటం వల్ల మనం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మన జాతిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఇస్కా సునీల్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి. వెరీ గుడ్. ఎవరైనా మాట్లాడతారా? ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? విజయబాబు మాట్లాడండి. మాట్లాడండి విజయబాబు గారు మాట్లాడండి. హలో మాట్లాడండి. హలో మాట్లాడండి. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర పదాధికారులకు, జిల్లా అధ్యక్షులకు, గౌరవనీయులైన ఇస్కా సునీల్ గారికి అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ముఖ్యంగా ఎస్సీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఎస్సీ కార్యకర్తలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదేశాలు కట్టుబడి చాలా మంది కరోనా సమయంలో సహాయ సహకారాలు అందించారు. అదే విధంగా పిఎం కేర్ కి డొనేట్ చేయడంలో కానీ, అలాగే ఆరోగ్య సేతును యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడంలో కానీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. అలాగే ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ కాల్ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ కన్నా ధీటుగా ఇది మనం ఈ జూమ్ యాప్ ద్వారా ప్రతి నిత్యము ప్రతిరోజు కలుసుకోవటము, మాట్లాడుకోవటము, మన మధ్య మరింత బంధాన్ని బలపరచడమే కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఎస్సీ మోర్చా ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ అయిన కమిటీగా ఏర్పడడానికి చాలా తోడ్పడుతుంది. దీనికి మాత్రం అందరూ అవుట్ రేటెడ్ గా డాక్టర్ ఇస్కా సునీల్ గారికి మనం అందరం రుణపడి ఉంటాము. ఆ అన్నకి మాత్రం ఒక్కసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. శాస్త్రి మాట్లాడతాను సార్. మాట్లాడమ్మా, మాట్లాడు. సార్ నమస్తే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్, నేను శాస్త్రి అండి. శాస్త్రి గారు మాట్లాడండి సార్. నమస్తే సార్. ఏం లేదు సార్, ఇవాళ మన మీటింగ్ కోసం కొత్తగా సభ్యులు వస్తున్నారు సార్. మన ఎం స్కైలాబ్ అని ఆయన మాజీ సర్పంచ్ గారు సార్. వారి సభ్యులతో జాయిన్ అవడానికి వచ్చారు. లైన్ లో ఉన్నారండి స్కైలాబ్ గారు. లైన్ లో లేరండి. స్కైలాబ్ గారు కొత్త సభ్యులు 8 మంది వచ్చారు సార్. కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియక ప్రస్తుతం రాలేకపోయారు కానీ బట్ దే ఆర్ ఇన్ లైవ్ సార్. నో ప్రాబ్లం. I wish you phone చేశాను. రైట్. థ్యాంక్ యూ. ఏం కనబడటం నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్. మాట్లాడచ్చు, ఒక్క నిమిషం మాట్లాడండి సార్. ఈ రోజు అన్న వినయ్ అన్న వాయిస్ చాలా కట్ అవుతుంది. వినయ్ అన్న, మీ నెట్ అన్స్టేబుల్ గా ఉంటే కట్ అవుతుందండి. మాకు ఇక్కడ బానే ఉంది. నెట్ లో డౌన్లోడింగ్ అన్స్టేబుల్ ఉంటది అంటే అలాగా వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే. అన్నగారు ఈ రోజు అన్నగారు హలో
నేను అన్ననే మాట్లాడుతున్నా ఒక్క నిమిషం. మాట్లాడు. ఈ రోజు మన ఆల్ ఇండియా ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షులుగా పనిచేసినటువంటి దుష్మంత్ కుమార్ గౌతమ్ గారు మరి ఆల్ ఇండియా ఉపాధ్యక్షులుగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇండియాలో. వారు మన చీఫ్ గెస్ట్ గా రావడం చాలా శుభసూచకం. ఎందుకంటే మన సునీల్ కుమార్ గారు పిలవగానే హలో మాట్లాడు సార్, సునీల్ కుమార్ గారు పిలవగానే మన దుష్మంత్ కుమార్ గారు టైం ఇచ్చి మనందరికి కూడా ఎస్సీ మోర్చా సభ్యులందరికీ కూడా మరి మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన ఏ రకంగా ఏ అంచులంచులుగా ఎదుగుతూ ఇండియాలో ఏ రకంగా ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులుగా ఎదిగారు అనే అనుభవాలు చెబుతూ, అలాగే సేమ్ టైం మన ఎస్సీ మోర్చాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా ఎవరిని తీసుకురావడం కోసం ఈ రోజు మన సునీల్ అన్న గారి ఆశీస్సులతో మనందరికి కూడా రావడం జరుగుతున్నది. మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాం, అన్నిటిలో కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా సాధించా. ఇవాళ 125 మంది పైనే రావడం చాలా మంచి శుభసూచకం. ఎందుకంటే ఎస్కా సునీల్ గారు పిలిపిస్తే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 125 మంది వచ్చారంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఇది కరోనా టైంలో కూడా సార్ వచ్చారు సార్. ఓకే, తీసుకోమ్మా. దయచేసి అందరూ సైలెంట్ గా ఉండండి. దయచేసి అందరూ సైలెన్స్ గా ఉండండి. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవద్దు. हमारा देश का नेता వచ్చారా? వచ్చారు సార్, ఇంకా ఆన్ చేయలేదు వీడియో. ఓకే సార్ మ్యూట్ చేస్తున్నా సార్. లైవ్ లో పనిచేస్తారు. అందరూ అన్నగారు ఒక్క నిమిషం సార్. సార్ అన్మ్యూట్ అయింది సార్, మాట్లాడండి సార్. ఓకే, नमस्कार सभी को सर. वेलकम सर, वेलकम टू एपी बीजेपी एससी मोर्चा. नमस्कार सर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में 125 जने 125 मेंबर्स वेटिंग कर रहे हैं सर. विनय डिस्टर्बेंस सर. 125 मेंबर्स अभी आपके संदेश के लिए सुनने के लिए रेडी है सर. जी. आपका स्वागत है सर. और मेरा इंट्रोडक्शन है सर. ये 60 विनय डिस्टर्बेंस వస్తుంది. రైట్ సార్. ఒక్క నిమిషం సార్ మాట్లాడు सर. ये 60 दिन में जब से मार्च 22 से लॉकडाउन हुआ, उसमें से हम लेके 60 दिन में 30 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करे सर. इसमें हमारा स्टेट प्रेसिडेंट कन्ना जी और नेशनल लीडर्स सत्य कुमार जी और हमारा स्टेट एमएलसी माधव जी, माणिक्यला राव जी एक्स मिनिस्टर और वीरराजू जी. और इसको छोड़ के हम बाहर से डॉक्टर्स, फॉरेन से डॉक्टर्स आके कोरोना के बारे में अपना एससी मोर्चा का दलित मोर्चा लोगों को प्रिकॉशंस कैसा लेना और क्या क्या किसी तरह से वो लोग रहना, उसके लिए भी डॉक्टर्स लेके आके दो बार लेक्चर दिए थे सर. और इसके साथ योगा और मेडिटेशन के लिए 2 क्लासेस लिए सर. और इसके बाद अपना दलित लोगों को, दलित समाज के लिए स्कीम्स एंड लोन्स और एससी कॉर्पोरेशंस का बेनिफिट्स, जो भी स्कीम है ऑल इंडिया अपना मोदी साहब का गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स है, अंत्योदय से स्कीम्स हुआ, वो अपना दलित लोगों तक आ रहे नहीं. उसके लिए हम 2-3 क्लासेस लगाया सर. इसमें इंडियन बैंक की एजीएम और एससी कॉर्पोरेशन का ईडी और डिक्की से लेके 1-2 जने एक्सपर्ट्स आके हमारे अपने दलित मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को एक भाषण देके वो लोग को मोटिवेट कर दिए सर. बोल तो लोन्स कैसा करना और स्कीम्स कैसा लगाना, क्या स्कीम लगाए तो कैसा आएगा, ये पूरा विषय बताया सर. इसमें से अपने लोग एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंचार्ज लगा के वो स्कीम और लोन के लिए और अवेलमेंट करने के लिए एक 30 जने का एक फाइल लगाया सर. वो 30 जनों को भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस आने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से
और एससी कॉर्पोरेशन से और बैंक से ये पूरा कार्यक्रम हम करें सर जी 60 दिन में। इसको छोड़ के हम बाकी कार्यक्रम पीएम केयर, आरोग्य सेतु, फूड फॉर नीड, ये पूरा 3 कार्यक्रमों को 3 इंचार्ज लोगों को रख के वो एक मॉनिटर करके एक डिस्ट्रिक्ट में अपना एससी मोर्चा के सभी कार्यकर्ता इसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुआ सर। ये कार्यक्रम तो बहुत बड़ा सक्सेस हो गया सर स्टेट में। भाजपा मेन पार्टी से ज्यादा अपना एससी मोर्चा काम लोग करके कार्यकर्ता से भी अभिनंदन प्राप्त हुआ सर। और एक बात है कि सर अंबेडकर जयंती जो अप्रैल 14 के दिन में हुआ था, हम पहले सोचे थे कि ये 129th बर्थडे था, हम सोचे कि 129 प्लेसेस में अंबेडकर जयंती मनाने के लिए, मगर अपने कृषि से अपना कार्यकर्ताओं के बल से ये ऑलमोस्ट 228 प्लेसेस में अंबेडकर जयंती बड़ा उत्सुक से थोड़े लोग घर पे ही कर रही है सर, और थोड़े लोग स्टैच्यू करने जाके गार्लैंड करके अंबेडकर जयंती को श्रद्धांजलि घटित करे सर। और इसके साथ भी हम न्यू मेंबरशिप ड्राइव ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में न्यू मेंबर्स जो भी अंबेडकर जयंती में पार्टिसिपेट हो गया है वो लोग के लिए नया मेंबर्स ले लेके अपना एससी मोर्चा को बढ़ाने के लिए, और वो लोग के लिए अलग 2-3 क्लासेस वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेके अपना भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, रविंद्र राजू जी और भरत जी, ये लोग आके आरएसएस का सिद्धांत के साथ अपना भाजपा का भी सिद्धांत बोल के वो लोग को मोटिवेट करके अपना पार्टी में स्वीकार कर लिया सर। इतना कार्यक्रम इतना छोटा समय में 60 दिन में हम पूरा करने के लिए पार्टी भी साथ दिए सर। हमारा अध्यक्ष भी कन्ना लक्ष्मीनारायण जी भी हमारे को बहुत इंकरेज करे सर, उसके लिए हम थैंक यू करते सर। और इसके बाद अपने तरफ से सर एक रिपोर्ट हमारा जीएस आपके पास पेशिश करेगा सर। जेबीआर चक्रवर्ती, जनरल सेक्रेटरी 60 डेज प्रोग्राम, सर के लिए प्रेजेंट करना प्लीज। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय कुमार गौतम जी को सारे एससी मोर्चा की ओर से स्वागत करता हूं सर। मेरा नाम चक्रवर्ती, धन्यवाद। मेरा नाम चक्रवर्ती है और मैं इधर प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहा हूं सर। जैसे हमारा अध्यक्ष आपको निवेदन किया है, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो जो डायरेक्शंस था, निर्देश था लॉकडाउन के समय में, उसी प्रकार हमारा जी सबको एक नारा दिया है सर। वो जो 3 कार्यक्रम जो हमारा प्रधानमंत्री जी बताए, फूड फॉर नीडी कार्यक्रम जो भोजन का वितरण, और आरोग्य सेतु ऐप का वो डाउनलोड करवाने का काम, और तीसरा पीएम केयर फंड्स के लिए डोनेशंस, ये सब इसमें हमारा कार्यक्रम इस तरफ था सर। 3 लोगों को ये 3 कार्यक्रम के लिए राज्य में कोऑर्डिनेटर बना के रखे हैं सर। वो 3 का नाम था, एक जॉन बाबू, दूसरा सत्य बाबू एंड राम बाबू। सो ये 3 लोग अपने ये हमारा आंध्र प्रदेश में 13 जिले है सर। हर जिला का अध्यक्ष ये कार्यक्रम के ऊपर हर शाम दिन ब दिन ये पूरा आंकड़ा लेके ये तीनों कार्यक्रम का ये कोऑर्डिनेटर्स को दिया गया है सर। ये 3 कोऑर्डिनेटर्स हर एक दिन में शाम तक वो जो आंकड़ा जो आए उसको करके एक बड़ा प्रतिवेदन बनाया गया है सर। मैं एक करके आपको बताऊंगा सर एक सूक्ष्म रूप में। ये फूड फॉर नीडी की कार्यक्रम में हम मार्च की माह में 6 दिन का काम हुआ सर। उसमें एक कार्यकर्ता 890 काम किया है सर, और लाभार्थी 12,000 तक था सर। फिर अप्रैल माह में 30 दिन का काम हुआ सर। उसमें कार्यकर्ता 1550 काम किया है सर, और लाभार्थी करीबन 25,000 था सर। फिर मई के माह में 10 दिन का काम हुआ सर। इसमें कार्यकर्ता 1160 था, और लाभार्थी 15,700 था सर। पूरा कुल मिला के ये पूरा अन्न भोजन वितरण का कार्यक्रम में ये 3 माह में करीबन कार्यकर्ता 3,600 काम किया है सर, और
52,600 हुआ सर। और किराना का सामग्री ये सब भेजने में कुछ मोदी के रूप में 2,400 भी वितरण किया गया है सर। फिर दूसरा कार्यक्रम पीएम केयर्स फंड में हमारा सारे जो कार्यकर्ता जो था ये 1,305 कार्यकर्ता ने पूरा रकम 5,19,200 रुपये पीएम केयर फंड डोनेशंस के रूप में दिया गया है सर। फिर आरोग्य सेतु ऐप जो डाउनलोड के बारे में मोर्चा का सदस्य जो काम किया है सर, इसमें सारे के सारे 13 जिले में करीब 9 लाख आरोग्य सेतु ये डाउनलोड्स किया गया है सर। सो ये 3 कार्यक्रम में ये था प्रगति निवेदन सर। और दूसरा एक छोटा सा बात करके मैं समाप्त करूंगा सर। ये जो हमारा अध्यक्ष जी ने जो बोला है, हमारा एससी मोर्चा का जो सदस्य है उसका आजीविका और ऋण का संपर्क बैंकों के साथ, ये सब इसके बारे में जागरूकता करने के लिए एक 3 महाअतिथि हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुआ सर, और बढ़िया से संदेश भी दिया सर। उसमें एक डिकी का एक सीनियर मेंबर था, दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससी कॉर्पोरेशन में एक सदस्य था, और दूसरा एक रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर इंडियन बैंक। ये 3 लोग, ये जो हमारा बीजेपी सरकार के द्वारा जो आयोजन है एससीज के लिए, उसके बारे में बहुत विस्तार रूप से वो लोग विवरण दिया है सर। और इसके बारे में हर एक जिले में हम इंचार्जेस को रखा गया सर। हर एक इंचार्ज का जिम्मेदारी वो है कि अपने अपने जिले में वो डीआईसी, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर या एससी कॉर्पोरेशन, ये सारे बैंक का जो अधिकारी का कांटेक्ट नंबर्स लेना पहले, फिर दूसरा जो योजनाओं का पूरा समग्र समाचार अपने पास रखना, और तीसरा है कि जो लाभार्थी या जो उत्सुक जो है अप्लाई करने के लिए, उनका सारे का सारे उसका क्या अनुभव है, कौन सा योजना में शामिल होने का, और वो अनुभव के साथ उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन, ये सब के बारे में बताने के लिए हम बोला गया है। अभी वो प्रक्रिया चालू है सर। सो ये आजीविका के बारे में हमारा एससी मोर्चा का सदस्य के लिए बहुत सारे बहुत दीर्घकालिक एक योजना, एक प्रणाली का रूप में हम चल रहे हैं। सो हमारा ताकि हमारा एससी मोर्चा का सदस्य जो भी हो, अन्य आम एससी लोगों को भी ये आजीविका के बारे में कुछ हम उसको मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। मेरा ये जो निवेदन प्रतिवेदन सुनने के लिए मैं बहुत आभार हूं सर। नमस्कार सर, धन्यवाद। अंबेडकर जयंती गंगाधर 2 मिनट में क्लोज करना, ज्यादा बात नहीं करना, 2 मिनट में करना प्लीज सर। नमस्कार सर। नमस्कार 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 नमस्कार। मैंने एससी मोर्चा आंध्र प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंस में हाजिर हो भारतीय जनता पार्टी జాతీయ ఎక్స్ అధ్యక్షులు एससी मोर्चा अध्यक्षुలు दिशित कुमार गौतम जी को नमस्कार करता हूं, और एससी मोर्चा राष्ट्र अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी को नमस्कार करता हूं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो सब एससी मोर्चा नेताओं को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम तलपुल गंगाधर, मैंने आंध्र प्रदेश एससी मोर्चा राष्ट्र जनरल सेक्रेटरी हूं सर। मैं अनंतपुर जिला वासी हूँ। मैंने अंबेडकर जयंती को भी रायलसीमा इंचार्ज हूँ। रायलसीमा में 84 स्थानों को अंबेडकर जयंती बहुत ही शानदार करे हैं। मैंने प्रधानमंत्री सहाय निधि को 120 जन्म को मेंबरशिप दिया हूँ सर। कल नया कार्यकर्ताओं को रायलसीमा में कर्नूल 460 नंबर्स और अनंतपुर 200 नंबर्स, कड़पा और चित्तूर थैंक यू गंगाधर 120 नंबर सर जन्म को पहुंचाया गया है। नया कार्यकर्ताओं को काउंट। थैंक यू गंगाधर। हेलो, हाँ, न्यू मेंबरशिप ड्राइव कमला।
न्यू मेंबरशिप ड्राइव कमला भारतीय जनता पार्टी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री दुष्यंत कुमार जी, गौतम जी, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग एससी मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट श्री इसका सुनील जी। My name is A. Kamala, AP State Secretary. Sir, we celebrate Ambedkar Jayanti anniversary with 228 people, sir. Same 225 members is taken as a new membership drive program. Based on this, we gathered 400 people in membership drive, sir. We active these people through phone calls, sir. District wise list is Anantapur district is 185 members, Kadapa 50 people, Kurnool 400, Nellore 120 people, Krishna 100 people, Guntur 135 people, Prakasham 100 people, Visakha people, East Godavari 140 people, East Godavari 55 people, Rajahmundry 50 people. Total membership drive is 1400. Sir, we used this lockdown period is lockdown time for membership drive is program, sir. The opportunity you may. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Kamala ji. और पूर्व कार्यकर्ता डोनेशन VS के प्रमोद चक्रवर्ती is there? Hi क्या? सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बात करो चक्रवर्ती जी। बात करो चक्रवर्ती जी। Sir, namaskar, sir. I am KNP Chakravarti talking from Visakhapatnam. I am General Secretary for the state of Andhra Pradesh SC Morcha, sir. In this lockdown period, we have utilized this valuable time organizing so many programs. And as my colleague, Mr. JBR Chakravarti, and also our SC Morcha President, Sri Sunil Iskaji, has already briefed you about each and everything that's going on in the state of Andhra Pradesh, about each and every program. So at last we have gone to the houses who are all the previous Karyakartas working in SC Morcha, who are all not attending right now. We have been going to their houses. We are requesting them to come again, and we have made our SC Morcha in organizing so many programs. So apart from all these things, we have been, as our president said, loans. We have organized. We have made certain teams as far as districts are concerned, sir. We have made team charges for. Cut అవుతుంది. Vinay. Even from the SC corporation of the concerned states. Sir. Also. There is some disturbance, Chakravarti. Thank you. Okay. Poor Karyakarta donation, sir. Krishna from Kurnool. Poor Karyakarta donation. Krishna from Kurnool. Namaste, sir. My name is Krishna from Andhra Pradesh, Kurnool district. Sir, BJP National Vice President Mr. दुष्यंत कुमार गौतम जी की नमस्कार जी, और राष्ट्रीय आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय एससी मोर्चा अध्यक्ष सुनील नमस्कार जी। सर, ये शटडाउन पीरियड में हम लोग को फूड फॉर नीड में कम से कम हम लोग को 200 प्रोग्राम्स किया। उसमें सबको वेजिटेबल्स और भोजन और नाश्ता और मास्क और रेशन कार्ड और 200 जगह में डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को सेवा किया, सब कुछ सेवा किया। हमारा कार्यकर्ता लोग कम से कम 200-300 आदमी लोग को सब दिन सुबह जाके सबको, और रास्ते में जाने वालों को, ड्राइवर्स और भिखारी लोग और पुअर पर्सन्स को सब जाके हम लोग को सबको नाश्ता दे दिया, सब कुछ दे दिया सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और ये 7 दिन में कम से कम हम लोग सबको कार्यकर्ता को कम से कम 460 मेंबर्स को हम लोग कार्यकर्ता लोग को ले लिया सर एससी मोर्चा में ड्राइव में, न्यू ड्राइव में इतना किया सर हम लोग। थैंक यू
ये टाइम दिया हम लोग को सबको। नमस्कार सर। थैंक यू कृष्णा जी। सर मैं 1 मिनट हमारे लोगों को आपके बारे में बताऊंगा सर, उसके बाद आपका अमूल्य संदेश स्टार्ट करना सर। ఎస్సీ మోర్చా సోదరులారా, మన దుష్యంత్ గౌతమ్ జీ గారు ప్రెసెంట్ నేషనల్ బీజేపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపాధ్యక్షులు గారు మన భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి. అంతకు ముందు ఆయన మన నేషనల్ బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చాకి ప్రెసిడెంట్ గా 2 సార్లు ఉన్నారు. మన ప్రతి ఒక్కరు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎవరైనా అన్నా కూడా దుష్యంత్ గౌతమ్ కుమార్ గారి పేరు తెలియని వారు ఉండరు. ఆయన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా చాలా సార్లు పర్యటించి ఉన్నారు. ఆయనకి మన యొక్క ముఖ్య నాయకులు అందరూ కూడా తెలుసు. బస్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి కూడా అన్ని విషయాలు తెలుసు. సో దుష్యంత్ గౌతమ్ గారి గురించి ఇది విషయము. ఆయన ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతారు. सर एक प्रयोग कर रहे हैं सर, आप पहली बार हम पूरा हिंदी में बात करने के लिए कुछ गलती है तो माफी करना सर। सर आपका संदेश हमें वेट कर रहे हैं प्लीज। सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबको हिंदी समझ आता है ना? जिसको आता है हाथ खड़ा करो। नमस्कार जी। आता है तो आता है सर, कोशिश करेंगे अच्छा हो। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की अध्यक्षता कर रहे भाई सुनील इसका जी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि कोई भी घटना घटती है तो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव लेकर भी आती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के अंदर कितना जल्दी कितना अच्छे तरीके से लोगों से मिलना हो रहा है, ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। क्योंकि हमारी डेली मीटिंग होती है, नड्डा जी सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठते हैं हम। और क्योंकि हरियाणा से मैं राज्यसभा का मेंबर भी हूँ, हरियाणा वालों के साथ भी बैठना होता है, ऐसे ही दिल्ली वालों के साथ भी बैठना होता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा देश अपने हाथ के अंदर है। जब भी चाहो जिससे जब भी जैसे भी चाहो बात कर सकते हैं और उस बात करने का लाभ भी मिलता है। जैसे आपने बताया अंबेडकर जयंती बनाई गई है, क्योंकि अंबेडकर जयंती पर मैंने देखा कि जब हम अंबेडकर जयंती बनाने जाते थे, पहले जाते थे तो हम घर के 2 लोग जाया करते थे, बाकी नहीं जाया करते थे। कभी 4 जाया करते थे, बाकी नहीं जाया करते थे। लेकिन मैं देखता था मोहल्ले और बस्तियों के अंदर भी 2 परिवार जाया करते तो बाकी परिवार घर पर रहा करते थे। लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे लगता है कि देश के हर घर के अंदर अंबेडकर जयंती बनाई गई। परिवार के हर सदस्य ने अंबेडकर जयंती बनाई। अंबेडकर जी के विचारों को पहुंचाने के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा उपयुक्त और उपयोगी समय ये रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को जानने के लिए। तो इसलिए ये नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक प्रभाव पूरे देश के अंदर हमारा मिलने जुलने का पड़ा है, इसका लाभ हमें भी मिला है। आज सुबह सुनील देवधर जी से बात हो रही थी तो हम उनसे यही बात कर रहे थे कि देखो एक समय हम मीटिंग में जाते थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी जाया करते थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। लेकिन जब हम बैठते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे नजदीक हैं, एक बोलता है सारी बातें सुनते हैं और समझ में भी आती है। तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज आप सबसे मिलना हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे भी मैं 2 बार आंध्र प्रदेश गया हूँ, विशाखापट्टनम भी गया हूँ। पिछली मीटिंग में किसी को ध्यान में रहा होगा, मेरे ख्याल आपके यहाँ से उस समय अध्यक्ष थे दारा सांबैया सर। हाँ नहीं, उसके बाद में एक और भी थे तो सीधा हाँ चलो, तो उनके वहां भी जाना हुआ। और एक बार मैंने एक मीटिंग के अंदर भाषण भी दिया था, तो मेरे ख्याल वो भाषण भी वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायरेक्ट 25-30 हजारों ने सुना था। बंदो, जब हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो हमें एक चीज माननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हुए आज इतने सारे लोग मेरे से बात कर रहे हैं, सभी लोग कॉर्पोरेटर, MP, MLA या सांसद बनने के लिए नहीं आए हैं। आंध्र प्रदेश जैसा क्षेत्र जहाँ पर संभावनाएं अभी नहीं बनी है,
और आने वाले समय में भी संभावनाएं नहीं दिख रही कि कोई MP MLA बड़ी संख्या में बनने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मकसद ये है कि हम राजनीतिक दल से कहीं ज्यादा सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन मतलब समाज के काम करना। जैसे देश के प्रधानमंत्री अनेकों बार अभियान चला चुके हैं, जिसमें एक अभियान होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसकी बेटी है वो बचाएगा, जिसकी बेटी है वो पढ़ाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये इशू लिया क्योंकि ये समस्या देश की है और देश मेरा है, देश को स्वावलंबी बनाना है, तो ये समस्या भी हमारी है, इस समस्या का समाधान भी हमें करना है। हमें स्वच्छ भारत चाहिए, साफ सुथरा भारत चाहिए, तो साफ सुथरे भारत के लिए हम सफाई कर्मचारियों पर डिपेंड रहते थे। सफाई कर्मचारियों पर डिपेंड रहे, वो सब उनका काम सफाई का है। फिर घर में आके तो घरवाली का काम सफाई का होता था। लेकिन आज हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से जो संदेश गया है, स्वच्छ भारत मतलब यह है कि सभी का भारत, उसमें आदमी भी उतना ही साफ सुथरा रखेगा। तो आज हम देखते हैं कि आदमी भी झाड़ू लगाता है, बच्चे भी स्वच्छता अभियान का पूरा ध्यान रखते हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी को मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति की चिंता करना। अंतिम व्यक्ति कौन? जो आज तक देश की धन संसाधनों से दूर रहा है। देश के संसाधनों पर सबका बराबर का हक रहता है, चाहे वह हवा हो, पानी हो, खनिज पदार्थ हो, भूमि हो, जगह, कोई भी चीज हो, सबका बराबर का हक रहता है। तो इसलिए जिनको 70 वर्षों में हक नहीं मिला, उनको वो हक मिलना चाहिए। इसके लिए हमारी लड़ाई है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमें चिंता करनी है लाइन में अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी। अंतिम व्यक्ति कौन? गरीब हो सकता है, असहाय हो सकता है, मजदूर हो सकता है, दलित हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, किसान हो सकता है, उस सबकी चिंता करनी। लेकिन उसमें 90% जो होते हैं वो दलित ही होते हैं। उनको कैसे चिंता की जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो आपने देखा होगा पहली बार देश के इतिहास में लाल किले से किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। यस सर। कि वो ये नहीं कि हर बार लाइन में लगे रहे, मुझे नौकरी दो, मुझे दो। अगर एक भी व्यक्ति नौकरी देता है 10 लोगों को, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। और हमने कहा ही नहीं है, जैसे आपने डिक्की के बारे में चर्चा की है, आपने अनेक संस्थानों के बारे में चर्चा की है, तो उसी के माध्यम से सभी 1.25 लाख बैंकों को उन्होंने आदेश दिया, उसी टाइम आदेश दिया कि हर बैंक की ब्रांच महिला को और दलित को व्यवसायिक बनाएगी, बिजनेसमैन बनाएगी। महिला भी इसलिए जोड़ा कि महिला आगे बढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, विचार आगे बढ़ता है, संस्था आगे बढ़ती है। तो इसलिए महिला और एक दलित वो बनाएंगे तो लोगों को नौकरी देंगे, उनको काम मिलेगा। और जहां तक अभी मैं आ रहा था तो मेरे से किसी मीडिया वाले ने एक प्रश्न किया, इस आगामी आर्थिक पैकेज में दलितों के लिए क्या है? मैं कहा इस आर्थिक पैकेज के अंदर दलितों के लिए ही सारा कुछ है। भाई अगर हम 3 महीने का अनाज दे रहे हैं, कोई अमीरों को तो दे नहीं रहे। हम जो 3 महीने का अनाज, आज मोदी सरकार पूरे देश को 3 महीने का अनाज दे रही है, तो गरीबों को दे रही है। गरीब कौन है? दलित है। अगर ये सरकार शौचालय बनाती है तो किसके लिए घर में बनाती है? कोई कोठी में नहीं बनाती, कोई बिल्डिंग में नहीं बनाती है ना, कोई पब्लिक स्कूल में नहीं बनाती, गरीबों के लिए बनाती है। तो इसलिए का इसका सारा का सारा काम जो आर्थिक पैकेज में भी हम देखते हैं, जो हमने गैस देने का काम किया है, आज हमने फ्री गैस देने का काम किया है। आज जनधन योजना, अगर जनधन खाते हम नहीं खुलवाते थे, पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि बैंक में जाने वाला व्यक्ति बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा, ब्रीफकेस लेके जाता है। लेकिन आज जिसके पास 0 पैसा है, अकाउंट में पैसा भी नहीं है, वो भी बैंक जा सकता है। बैंक किस नहीं सर सार्द अनस्टेबल सर मन ఎంత ఓకే सर उनको और किसानों को 2000 रुपए दिया गया, पुरुषों को दिया गया। अब सीधा पैसा, हम अभी याद करते कि राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे जाता है।
आज 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया ही जाता है, Right. अब 15 पैसे जाता था तो 85 पैसे कौन खाता था? Yes. सर शारद अनस्टेबल गा सर। आज उनको दलाली नहीं मिल रही है तो उनको परेशानी हो, तकलीफ हो रही है। इसलिए आपको कई जगह, क्योंकि आप तो एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर हम विपक्ष में काफी दिन से हैं और अभी हमें सरकार में आने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान की हम जहां तक बात करें, आप ध्यान रखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को पढ़ने के लिए आपको कोई ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सारांश में अगर मैं बताऊं, 2015 के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी, उस जयंती के अंदर 2 दिन का पार्लियामेंट चला था डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर, और 2 दिन के पार्लियामेंट की जो डिबेट थी, उस डिबेट को आपको सुनना चाहिए। या उस समय का 5 जन्य निकला था एक, उस 5 जन्य के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या है, कैसे उनके विचार थे, क्या सोच थी, वो सारा कुछ लिखा है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा, ये विचार आपको भी रखने चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के नेता थे, डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों के लिए काम किया। ये एक सोच पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर बनी हुई थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के नेता थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अभी तक जो पुस्तकें लिखी गई थी, जो उन पे लेख लिखे गए थे, जो अखबार में लेखन कार्य हुआ, उन सब के माध्यम से जो मालूम पड़ा कि उन्होंने आरक्षण दिया, आरक्षण के साथ में दलितों को ये दिया, वो ये लिखा हुआ था। लेकिन आप अगर अपने दलित साहित्य के लिखने वाले लोगों को पूरा साहित्य पढ़ोगे तो उनका बहुत कुछ व्यापक लिखा गया, लेकिन कांग्रेस शासन ने इस 70 वर्षों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर जी रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, भगत सिंह रहे, अनेक लोगों ने, जिन महापुरुषों ने देश के अंदर पिछले सैकड़ों वर्षों से एक क्रांतिकारी काम किए, सामाजिक परिवर्तन किया, उन सबकी लेखन सामग्री को डाइल्यूट कर दिया, हटा दिया, उनके बारे में पढ़ने नहीं दिया गया। खाली जवाहरलाल नेहरू को पढ़ो, आप इंदिरा गांधी को पढ़ो, आप गांधी को पढ़ो, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज हम जब देखते हैं, जब मैंने 26 नवंबर की डिबेट डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर पढ़ी, आप इस बात को उल्लेख करें कहीं पे भी जाएं कि हम किसी महापुरुष को कब याद करते हैं। गांधी जी को 2 अक्टूबर को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को उनको जन्मदिन पे याद करते हैं, जितने भी महापुरुष हैं उनको जन्मदिन पे याद करते हैं, अधिकतरों को। कोई ज्यादा होता है तो उसको पुण्यतिथि पे भी याद कर लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से 26 नवंबर, जिस दिन संविधान 1949 को 1949 को संविधान समर्पित किया गया था, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाना, संविधान दिवस घोषित करना और उस दिन 2 दिन की डिबेट करना, तो इसलिए आज खाली इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको साल में 3 बार याद किया जाता है। 14 अप्रैल जन्मदिन, 6 दिसंबर पुण्यतिथि और 26 नवंबर संविधान दिवस। खाली एक ही व्यक्ति ऐसा है और इसका श्रेय जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन जब 26 नवंबर को हम उल्लेख करते हैं, संविधान दिवस पर बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो उसका उल्लेख जो 2015 में उन्होंने किया, आज का भारत जो हम देखते हैं, आज बैंक इंडिया वो अपना रिजर्व बैंक होना चाहिए, ये डॉक्टर अंबेडकर जी की देन थी। इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन थी। प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन थी। उसके साथ साथ
महिलाओं को अगर किसी देवता को मानना है तो डॉक्टर अम्बेडकर को मानना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बराबर का हक मिले, पुरुषों की बराबर उनको प्रॉपर्टी मिले, पुरुषों की बराबर आजकल कोर्ट में मिलता है, लेकिन उस समय संघर्ष किया था। और बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिजाइन किया था। महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए। जब वहां की उस समय की सरकार जवाहरलाल नेहरू की नहीं मानी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ऐसी लेबर रिफॉर्म, लेबर के बारे में 8 घंटे काम करेंगे और इनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा और इनको ओवर टाइम मिलेगा, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, आदमी आदमी की तरह इंसान की तरह जी सकता है। पहले क्या होता था, लेबर थी अपने 12 घंटे काम कर रही है, 14 घंटे काम कर रही है, लेकिन लेबर के लिए अगर कोई भगवान बनकर पैदा हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ। आज का भारत जो हम देखते हैं, डैम का निर्माण हो, एनर्जी कैसे यूज हो सकती है, पानी का कैसे उपयोग होगा, कैसे हम आधुनिक भारत बना सकते हैं, जिसको आज तक कांग्रेस ये कहती रही कि ये जवाहरलाल नेहरू का भारत है। लेकिन हम देखते हैं कि आज का भारत, जो हम भारत देखते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है। आज के भारत का निर्माण अगर किसी ने किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। डॉक्टर अंबेडकर जी का भारत है आज का भारत। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय जो बातें कही थी वो आज चरितार्थ होती है। और उन्होंने कहा था कि आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन के साथ साथ सरकार जो आए वो योजना अच्छी बनाए, योजना बनानी चाहिए, उसको स्वावलंबी योजना बनाना चाहिए, आर्थिक स्थिति अच्छी हो ऐसी योजना बनानी चाहिए। लेकिन अब से पूर्व की सरकारें योजना कोई नहीं बनाई, आरक्षण देंगे, इतना दाखला देंगे, इतना ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन योजना क्या होती है? योजना ये होती है जब मैं आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाऊंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है, मेरी जाति कोई नहीं पूछता, सब मिलकर रहते हैं। अभी मैं इसका जी के एक लड़की की शादी में गया था, वहां कहीं जात पात नहीं दिखाई दी मेरे को। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी है। जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो जात पात के झगड़े भी कम हो जाते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने ये काम नहीं किया। वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। गरीब और अमीर के बीच में क्या खाई है, आर्थिक स्थिति कहां से चालू होनी चाहिए। अब हमारे पास ना तो गैस है, स्कूल है, डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं है। अब से को आप बराबर की लड़ाई लड़ो, कैसे लड़ लेंगे? इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने पैदा होने से लेकर मरने तक पहले तो इक्वल खड़ा किया। जिनके घर में शौचालय नहीं उनको शौचालय देंगे, जिनके घर में मकान नहीं उनको मकान देंगे, जिनके घर में अकाउंट नहीं उनको अकाउंट देंगे, जिनके घर में बेटी की समस्या है उसको पढ़ाने के लिए पैसा देंगे, उसके भविष्य के निर्माण करेंगे। जिनके परिवार के बुजुर्ग हैं उनके लिए बीमा योजना हम लेके आए ताकि वो चिंता मुक्त रह सकें। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सारी योजना ऐसी लेकर आए, और जिसमें हमने ना जाति को देखा, ना धर्म को देखा, ना भाषा को देखा, ना प्रांत को देखा। आंध्रा वालों को भी उतना ही मिलता है जितना जहां हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, उतना जितना जहां वहां मिलता है। तो इसलिए हमने सारी योजनाओं को ऐसे स्वावलंबी बनाकर आगे पहुंचाने का काम किया है। अभी तक हम देखते रहे कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम लोग जुड़ते थे, लेकिन आपके एक अच्छा प्रयासों से, अथक प्रयासों से मैं भारतीय जनता पार्टी से काफी लोग जुड़े पीछे, क्योंकि मैं मेंबरशिप अभियान में भी था, सदस्य उसका मेंबर था, तो उसमें भी जाना हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी को काफी लोग लाइक करते, पसंद करते। दलित लोगों की बात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग दलितों के नाम पे राजनीति भी कर रहे हैं। इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर को उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको जरूरत होती है। वो ब्राह्मणों के अगेंस्ट उसको भड़काते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग आज की तारीख में अपने आप को स्वावलंबी बन गए हैं, पैसे वाले बन गए हैं, नेता बन गए हैं, वो आज हिंदुओं को गाली बकते हैं। क्यों बकते हैं? क्योंकि उनको नेतागिरी करनी है। अरे भाई, आप ब्राह्मणों को गाली बकते हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तो पत्नी ब्राह्मण थी। डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु थे अंबेडकर जो नाम है, वो भी ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सहायक थे अजगले, वो भी ब्राह्मण थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ब्राह्मणों से नफरत नहीं करते थे, वो ऐसे विचारों से नफरत करते थे जो समाज को तोड़ने वाले थे, ऐसे विचारों से नफरत करते थे।
इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमेशा संघर्ष किया। और फिर वो कब की बात दिखाते हैं, आप उनसे पूछा करो, क्या भाई आप कैसा भारत चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर तो मजबूत भारत चाहते थे, सशक्त भारत चाहते हैं। आज मजबूत और सशक्त भारत हम बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का भारत देखे तो आज का भारत डॉक्टर अंबेडकर का भारत है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो भारत चाहते थे वो आज बन रहा है। लेकिन अगर उनको लगता था कि कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, तो संविधान बनाया उन्होंने। संविधान में सारी उसने शंकाएं दूर कर दी लोगों की। आज हमें भड़काया जाता है, हमारे पीछे घड़ा बांध दिया करते थे, झाड़ू बांध दिया करते। अरे वो तो बातें गई, पुरानी बातें हो गई। आज तो संविधान है, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर दीजिएगा। आज कौन करता है ऐसी बातें? हाँ, कुछ कुछ बातें कहीं पे होती है तो वो सामाजिक बुराइयां हैं। वो समाज में परिवर्तन होते होते वो सामाजिक बुराई दूर होगी। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का भारत, वर्तमान भारत जो है डॉक्टर अंबेडकर का भारत है। और खुद देश के प्रधानमंत्री स्वयं बोल चुके हैं, अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो प्रधानमंत्री की सीट पर ही नहीं होता। इतनी बड़ी बात बोलना, और कई बार चर्चा चलाते हैं ये लोग जब इनको दिखता है कि दलित वोट बैंक, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक था, जिसका वोट बैंक चला जाए, जिसकी तिजोरी लूट जाए, फ्री में मिलने वाला माल लूट जाए, तो तकलीफ तो होगी। अब ये फ्री की बातें दाएं बाएं की, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे। मोदी जी ने कहा है जब तक मेरा जीवन है, जब तक संविधान को कोई माई का लाल नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर कर प्रभावित करने की ये बात करते हैं। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि संविधान में जो लिखा है, आरक्षण जो है वो कभी भी नहीं बदल सकता। आरक्षण जब ही बदलेगा जब हम चाहेंगे कि भाई आरक्षण खत्म होना चाहिए, वरना आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए इनके वोट बैंक की लड़ाई से हमें बचना है और सबको बचाना है, बचाना भी हमारा काम है। आज जितनी योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाना हमारा काम है, कोई नहीं पहुंचाएगा। सामाजिक काम मैंने बताया ना, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हम सामाजिक वर्कर हैं। आज हम देखेगा ना, आप आज कोरोना फैल रहा है, हम सब जगह खाना पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, सबको खाना हम दे रहे हैं। क्या हम आंध्र प्रदेश जैसे प्रांत के अंदर जहां हमारी सरकार नहीं है, क्या हम सबको बता सके? हम अपने दलितों को बताना चाहिए 3 महीने का खाना राशन मोदी सरकार ने फ्री दिया है, फ्री दिया है ना। अब बताना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, पहुंचाना है, अपने लोगों तक वो पहुंचे। जिनका जनधन खाता है उनको 500 रुपए महीना हम महिला को दे रहे हैं, वो 500 रुपए अपने खर्चे के लिए ले सकती है। किसान है उनको 2000 रुपये दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। ये सारी चीजें उनके पास पहुंचे। क्या हमारे दलित भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल रहा है? क्या हम दलित लोगों का एक 5-7 लोगों का हर ग्रुप हर जिले में बना दें, वहां पे हमारे सोशल जस्टिस की उसको वेबसाइट को खोलें, क्या क्या योजना है, नौकरियां कैसे मिलती हैं, सफाई कर्मचारियों को हमने महिला डोने से कैसे मुक्त किया है? हमने मुक्त किया है। मुझे ध्यान है अमित शाह जी ने कहा था कि मैं इस देश से मैला डोना, सर पे मैला डोना जैसे कलंक हमारे देश कलंक लगा हुआ है, उसको दूर करना है। इस कारण से हमने 9 करोड़ शौचालय बनाए। और जो लोग ऐसा काम किया करते थे उनको नौकरी छुड़ाकर, उनको काम छुड़ाकर, उनको हमने ड्राइविंग लाइसेंस दिए, उनको अनेकों ने काम दिए। इसलिए हमें योजनाएं सब तक पहुंचाना, उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बताना। एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके संविधान में लिखा हुआ है जो छुआछूत करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। हमारे संविधान में लिखा हुआ, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है सब वर्ग को लेकर साथ चलती है। भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, हमारे विचारों की पार्टी है। तो इसलिए ये उन तक पहुंचाना, सभी के पहुंचाना। अब लोग तो राजनीति भी करेंगे तो उनको उसका जवाब भी देना। और अपने 5-6 लोगों की हर जिले के अंदर एक कमेटी बनाकर, पढ़े लिखों की जो कंप्यूटर जानते हो, सोशल जस्टिस की उसकी वेबसाइट पे जाएं, कहाँ का क्या काम निकाला है, क्या रोजगार निकाला है, किस चीज को किस का फार्म। अभी हम मान के चलते कि हमारे गरीब लोगों में, दलित लोगों में ना तो फार्म भरने की, एप्लीकेशन भरने की अभी आदत नहीं है, ऑफिस में जाने की आदत नहीं है, बात करने की अभी आदत नहीं है, घबराते हैं, परेशान होते हैं।
तो इसलिए उनको स्कूल तक पहुंचाना, स्कूल से योजनाओं का लाभ पहुंचाना, कोरोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा और पूरे देश के अंदर काम किया। कोरोना, आज मैं एक जगह गया था, भोजन वितरण के लिए गया था, मैंने उनसे एक सवाल किया, भाई कोरोना से बचना है, किसको बचना है? अरे कोरोना से बचना है तो मुझे बचना है, मुझे मरने से बचना है ना, मैं मौत नहीं चाहता, इसलिए मुझे कोरोना से बचना है, मुझे बचना है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे मुझे इंडिविजुअल लड़नी है कि मुझे बचना है। अब मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, उसको खाना समय से मिल जाए, और अबे वो गरीब आदमी है उसको बोलना चाहिए कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कम से कम आपके पास दूध नहीं है तो पानी में हल्दी मिला के पी सकते हैं। आयुष मंत्रालय का काढ़ा आ रहा है, काढ़े को हम वितरित कर सकते हैं, खाना उन तक पहुंच गया ना कि इसकी चिंता कर सकते। खुशी है कि हमें देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई को, जो भारत विश्व संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला दूसरा देश है, उसके अंदर हम कोरोना के अंदर इतने सुरक्षित हैं कि जो लोग इटली, अमेरिका, हम पूछते देखते थे कुछ दिन पहले, कहाँ जा रहे हैं इलाज कराने के? इटली जा रहे हैं, आप इलाज कराए, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आप इलाज कराए, अमेरिका जा रहे हैं। आज सारे लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। इतनी बड़ी महामारी को इटली वाले नहीं बचा सके, अमेरिका वाले नहीं बचाते, लेकिन हिंदुस्तान वाले सुरक्षित हैं। और उसका परिणाम निकला है कि संसार के अंदर हिंदुस्तान ने जगह बनाई है, और जगह बनाने के कारण ये हुआ कि आज WHO का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है बनेगा, वो हिंदुस्तान का बनेगा। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, आज टुडे इज माय आई थिंक 21 एंड टुमारो इज 22, है ना? कल 22 तारीख को वो उसको ग्रहण करेंगे। WHO का चेयरमैन हिंदुस्तान का होगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हमें ये लड़ाई कई फॉर्म पे लड़नी पड़ रही है, अंदर लड़नी पड़ रही है, जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं उनसे लड़नी पड़ रही है, हमें बॉर्डर पे लड़नी पड़ रही है, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए रोकना चाहते हैं, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर हमारे पास में चाइना हो गया, बाहर भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमें बॉर्डर्स के ऊपर आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सब लड़ाई को हम आपके दम पे लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज एक मजबूत भारत के रूप में सारी लड़ाइयों को लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है एक अच्छे देश का हम निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना से सबसे पहले मुझे खुद को बचना है, पहले मुझे खुद को बचना है, अपने परिवार को बचाना है, फिर अपने समाज को बचाना। इसलिए पहले मैं कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखता हूँ, मैंने फेस मास्क पहना है नहीं पहना, मैं बाजार में जा रहा हूँ तो कितना अपना आपको एहतियात बरत रहा हूँ। और अभी तो आपके आंध्रा की तरफ की तो उड़ीसा है और आपका वेस्ट बंगाल है, अभी साइक्लोन्स भी आ रहा है, वो भी परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। इसलिए सब परिस्थितियों के अंदर हम मिलकर, हमारे पास एक ही मंत्र है, नर सेवा नारायण सेवा। हम सेवा के अंदर ही अपने आप को तृप्त करते हैं, सेवा के माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं, सेवा ही हमारा लक्ष्य है। हिंदुस्तान को मातृभूमि मानते, माँ मानते हैं, और माँ को किसी प्रकार से तकलीफ में नहीं दे सकते, ये मूल मंत्र। और डॉक्टर अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलना, और डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए बहुत किया है। अभी तो समय आपके पास कम है, डॉक्टर अंबेडकर जी पे 1 घंटा बोला जा सकता है। उनके 5 स्थान जिनको पंचतीर्थ कहते हैं, जहां उनका जन्म हुआ महू के अंदर, उसका निर्माण हमने कराया। मैं खुद देख के आया था, 15 साल पहले कुछ नहीं था वहां पर, हमारी सरकार हमने उसका निर्माण कराया। जहां उनकी स्टडी हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उस बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया था उन्होंने, मालिक ने, कि इस बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर भीमराव, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर रहकर गए हैं। मैं इसको देखना चाहता हूँ, किसी ने भी नहीं खरीदी, कांग्रेस ने नहीं खरीदी, हमने खरीदी। और आज हमारे विद्यार्थी, हम 100 विद्यार्थियों को पिछली बार वहां भेज सके। हर साल 100 विद्यार्थी जाते हैं, आप भी वहां पे अप्लाई कीजिएगा।
और आप इंग्लैंड भी जा सकते हैं। दूसरी भूमि वो हो गई। तीसरी जहां उन्होंने दीक्षा ली थी नागपुर के अंदर, दीक्षा भूमि बोलते हैं। चौथी हमारा यहाँ पर दिल्ली के अंदर अंतिम सांस ली थी उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं अपने परिनिर्माण भूमि। और सबसे बड़ी भूमि जहां उन्होंने संस्कार हुआ था चेत भूमि, मालूम है आपको? आप दिल्ली आते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं, गांधी जी की समाधि देखते हैं, गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, जवाहरलाल का कहाँ हुआ, लेकिन आपको अंबेडकर की समाधि के बारे में नहीं मालूम होगा। अंबेडकर की चेत भूमि कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर, सॉरी बम्बे के अंदर, दादर के किनारे पर, समुद्र किनारे पर है दादर के अंदर, और छोटी सी है एक कदम। आज हमने 10 एकड़ का हिंदू मिल को बंद कर मोदी सरकार ने आज बहुत बड़ी समाधि बनाई जा रही है डॉक्टर अम्बेडकर जी। और आपको एक बात बताऊं आश्चर्यचकित, आप गांधी जी के संग्रहालय में जाते हैं तो वहां गांधी का चश्मा देखते हैं, बैट देखते हैं, उनके सारे कपड़े जीवन में इस्तेमाल किए हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जाते 3 मूर्ति, अभी कभी जाएंगे तो उनके अचकन मिलेगा, बड़ा वाला कोट मिलेगा, गुलाब का फूल भी कई जगह रखा हुआ है, जिस कमरे में लेटे वो सब कुछ है उसमें। इंदिरा गांधी के जाएंगे तो जिस साड़ी में गोली लगी थी वो साड़ी भी रखी हुई है, रखी है ना। आपके मन में कभी हुआ ऐसा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का चश्मा कहाँ है, डॉक्टर अम्बेडकर जी जिस मकान में रहते थे वो सामान कहाँ पर है? कभी नहीं आया किसी के मन में। लेकिन मैं जब मोर्चे का अध्यक्ष था, मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा एक जगह नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली गांव, एक टीवी वाले ने दिखाया, मैं वहां पर गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जिस कंप्यूटर टाइपराइटर से संविधान लिखा था, वो टाइपराइटर जिससे बुद्ध की मूर्ति के सामने बुद्ध धर्म अपनाया था, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो कोट पहना करते वो कोट, कभी 100-150 करीब टाइयां, घर के सारे सामान वहां पर सड़ गए, दीमक खा गई उनको। लेकिन आज हमारे प्रयासों से, प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज 13 एकड़ के अंदर वहां पर हम एक संग्रहालय बनाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार दलितों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, अंबेडकर के सम्मान के लिए, संत रविदास जी के सम्मान के लिए, वाल्मीकि जी के सम्मान के लिए, सबके सम्मान के लिए आज खड़ी हुई है। और महापुरुषों का सम्मान हम इसलिए नहीं करते कि हमें उनका वोट चाहिए। महापुरुषों का, जातियों के महापुरुषों का, धार्मिक महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का हम सम्मान इसलिए करते हैं कि उन्होंने देश को बनाने के अंदर कुर्बानी, त्याग और तपस्या की है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनको इलेक्शनों में ध्यान नहीं करते, हम लगातार 5 साल ध्यान करते हैं, इसलिए उनको भी याद करते हैं। उनका भी कल्पना, उनकी भी सोच यही थी कि एक मजबूत भारत बनना चाहिए, हमारी भी सोच है मजबूत भारत बनना चाहिए। आज देश कोरोना से पीड़ित है। इस कोरोना की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार डेली कोई ना कोई कार्य योजना बनाकर दे रही है। उस कार्य योजना को 100% पक्का करना, चाहे वह मास्क के जरिए हो या नीड द फीडिंग ऑफ द नीड हो, चाहे वो अपना आपका आयुष मंत्रालय का काढ़ा हो, और पीएम जो फंड में भी आपने दिया है, ये सारे काम को करते हुए सबसे पहला काम ये है कि कोरोना से लोगों को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है और सारी योजनाएं वहां पहुंचानी है। ये 2020 बचने का साल है। 2023 में जान बचानी है, जहान बचाना है, देश बचाना है और विश्व में भारत का नाम ऊंचा करना है, विश्व में एक अच्छा स्थान प्राप्त करना है। यही हम आंध्र प्रदेश में कल्पना भी कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम मेहनत और लगन से उस तरीके से खड़े होंगे। आज हम केरल के अंदर हम सरकार में नहीं है, और लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहां लगातार कुर्बानी दे रहा है, मर रहा है, मारा जा रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर हम सरकार के अंदर नहीं है, वहां का कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चलता है उसको मार दिया जाता है। उन सबको हम अपने आप को समर्पित करते हुए आप सब लोग मिलकर आंध्र प्रदेश में भी आने वाले समय के अंदर, जहाँ आंध्र प्रदेश को कोरोना से बचाएंगे, वही आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी फहराने का काम करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो मोटिवेशनल स्पीच है, जो अम्बेडकर जी का 4 पंचतीर्थ के बारे में और 20 लाख करोड़ की जो प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज था, उसका बेनिफिट अपना दलित लोगों के कैसा आएगा, ये पूरा
एक स्पष्ट हो गया सर अपना एससी मोर्चा कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को। और सर आपका टाइम है तो 3-4 जने आपसे बात करना चाह रहे। ठीक है सर। मुसलैया सर बात करो। सर दुष्मंत कुमार गौतम जी नमस्कार जी। इसका सुनील गार जी नमस्कार जी। సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా సార్ మీరు సార్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు। చెప్పండి। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అమలాపురంలో సుదయపాలెంలో దళితుల సంఘటన జరిగినప్పుడు శర్మకారులపై సంఘటన జరిగినప్పుడు దుష్మంత్ కుమార్ గౌతమ్ గారి ద్వారా సంఘటన మహామంత్రి రవీంద్ర రాజు గారి సమక్షంలో మన ఎక్స్ఎమ్మెల్యే గారు అయోధ్య వేమ గారి సమక్షంలో ఆ రోజున మీ పెద్ద ఎత్తున ఆ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది। దోషులందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। అప్పుడు దుష్మంత్ కుమార్ గారు ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా మాకు ఎంతో హెల్ప్ చేశారు। విజయవాడ రావడం వారిని అంతా కలిసి స్వయంగా వారితో మాట్లాడి లెటర్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది। सर इसका मुसलैया का जो क्वेश्चन बोले तो आपको याद कर रहे हैं सर। 10 साल के पहले आप एक बार भीमवरम के पास एक हड़ताल हुआ था, उसके वो टाइम में रविंद्र राजू भी थे। उसके बाद वो एससी मोर्चा लोग आप अध्यक्ष जी थे सर विजयवाड़ा में के आप मनोधैर्य दिए वो लोग को, वो लोग उसके लिए वो लोग खुश है सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर गुरुजी। मदिरा राम बाबू లేదు సార్ అధ్యక్ష మేము ఏమైనా మాట్లాడొచ్చా తెలుగులోనా? లేదు చెప్తాను, నేను చెప్తాను ఒక్క నిమిషం। భగవాన్ దాస్ నమస్తే సార్। సార్ ఐ వాంట్ టు say about reservations point. Sir, central government is giving permission to the private engineering college and medical colleges, but they are not giving permissions to reservations in the private sector. Like this, our people are appointed in those colleges. When they are getting 42 or 50,000 of salary, they are removed from the services. If the reservation is there, there should not be like that. So I request you, sir, please keep the reservations at the time of giving permission to the private sector. So this is very important point. The government is taking reservations in respect of the SCs. So it is one kind of lacking reservations in the private sector. At the time of permission, the government think about this. Thank you, sir. It is very pending before 20 or 30 years. I will discuss with government and I see the what is position now and what क्या संभावना रहेंगे इसकी देखते हैं, बात करेंगे इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। कट्टा पद्मा गारू మాట్లాడండి। ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి। అంబేద్కర్ రెడీ। आज का चीफ गेस्ट श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, आपको प्रणाम करती हूँ। आप इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया सबको। हम लोग खुद ही से जाके देखेंगे तो कितना खुश आ जाएगा, इतना खुशी आया। आप एक मेंशन करते समय में बहुत खुश हो गया क्योंकि सारा दुनिया सुन रहे। आज एससी मोर्चा टीम सब लोग आपका वजह से इंतजार कर रहे। सो आज कोरोना वायरस से भी क्या खाना लेना है, क्या पीना है, सब केयर बोल दिया आप लोग। सर आपका सामने एक क्वेश्चन पूछती हूँ सर, गलत मत सोच लीजिए। क्या की क्वेश्चन, बाबा साहेब आम्बेडकर जी, उसका बेटा स्वर्गस्थ होते समय में भी अंतिम यात्रा में नहीं है। वो बाबा साहेब आम्बेडकर जी लंदन गया था। लंदन जाके वहां से राउंड टेबल समावेश में गांधी जी का पास लड़ाई करके वोट हक लेके आया। सो वो वोट हक हम सबके लिए लेके आया बाबा साहेब आम्बेडकर जी। सो वो वोट क्या होता है, आजकल दुनिया में दुर्विनियोग करते हैं सब लोग।
दुर्विनियोग का मतलब दारू पीने के लिए, मीट मच्छर के लिए, पैसा के लिए वोट उसको देते हैं। सो हम ऐसे मोर्चा सभी को सबका सामने बोलती हूँ, सब ऐसी मोर्चा सब लोग भाई बहन लोग गलत मत सोच लीजिए। नहीं, क्वेश्चन यू आस्क द क्वेश्चन। हम सब लोग वो वोट दुर्विनियोग करते हैं ना, सो दुर्विनियोग वैसा हो जाएगा तो अंबेडकर इतना कोशिश करके लेके आने वाला वोट गड़बड़ होता है। हम सब लोग आज से वो वोट दुर्विनियोग नहीं करने के लिए कोशिश करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको। कल ही एक किताब में पढ़ा हुआ, सब आपको पूछ रही हूँ, ये कैसा बंद करने के लिए कोई समाधान दे दीजिए, सबको लोग सुनेगी। सो आपका जवाब लेके हम सब लोग थोड़ा लोग को सब लोग स्लम एरिया में और ऐसी जगह जाके बोलने के लिए कोशिश करेगी सब। सो ये वोट कैसा सद्विनियोग करने के लिए थोड़ा सा आप लोग जवाब दे दीजिए। देखिएगा, संविधान बनने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के अंदर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब से पहले रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे, लेकिन आज मैं आपको वोट का अधिकार दे रहा हूं, आपके वोट से राजा पैदा होगा। आप जिसको वोट दोगे वो आपका सेवक बनेगा। इसलिए अपने लोगों को एक बात समझानी चाहिए, आपकी लड़ाई अच्छी है और इसको लोग समझ भी रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे डॉक्टर का वोट हो, और एक दलित का वोट हो, गरीब का वोट हो, बराबर का हक है। हाँ जी। इसलिए आप मत मांगो कोटा परमिट, कम से कम आप अपने वोट के बदले के अंदर मेरे बच्चों को स्कूल कौन देगा, उम्मीदवार को बुलाना चाहिए, कैंडिडेट को, हर पार्टी को, मेरे स्कूल कौन देगा, डिस्पेंसरी कौन देगा, पार्क कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, रोजगार कौन देगा, बहन बेटी को सुरक्षा कौन देगा, बुजुर्गों को सम्मान कौन देगा, उससे कमिटमेंट लेनी चाहिए। ये मेरा वोट का अधिकार है ना जी? हाँ जी। ऐसे कमिटमेंट लोगे और गरीब आदमी को बताओगे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे, एजुकेटेड होगे तो आपको अधिकार मालूम हो जाएगा। आप संविधान पढ़ लेंगे, किताब पढ़ लेंगे तो आप अपना वोट ऐसे नहीं देंगे। इसलिए पहले हमारी लड़ाई ये है कि शिक्षा को उसके यहाँ तक पहुंचाना। अब हो क्या रहा है, एजुकेशन तो ली नहीं, संगठित हुए नहीं, हम संघर्ष करने निकल गए, संघर्ष पहले करने लगे, जिसके कारण से हमारे विचारों में थोड़ा सा मतभेद आया है। इसलिए हमें पहले शिक्षा दो और फिर उनको समझाओ कि तुम्हारा वोट के माध्यम से तुम्हारे को नौकरी मिल सकती है, तुम्हारे वोट के माध्यम से पार्क बन सकता है। अगर आप पार्क नहीं बनाओगे, स्कूल नहीं बनाओगे तो तुम्हारा इतना पैसा खर्च होगा, इस दारू की बोतल से क्या मिलने वाला है। और ये सही बात है, आंध्रा के अंदर मैं जब भी जाता हूँ वहां पे देखता हूँ, वहां तो पैकेज चलता है, हम ये देंगे वोट दो, हम ये देंगे वोट दो, हम आप ये दो वोट दो। नहीं, मेरे बच्चों को नौकरी कौन देगा, शिक्षा कौन देगा, इस काम को हमें करना पड़ेगा। देखो, आप हर व्यक्ति ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर पैदा नहीं हुए, कहाँ पैदा होंगे डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर हमें ही बनना पड़ेगा, हमारे बीच में से बनना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के 4 बच्चे, चारों बच्चे मर गए थे, पत्नी भी मर गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सारा जीवन समाज के लिए लगाया था। इसलिए समाज को जीवन देने वाले लोग निकलें और अपना जीवन समाज को लगाएं तो परिवर्तन आएगा। अंबेडकर जी। అధ్యక్ష, గుంటకల్ నుంచి రామాంజనేయులు అధ్యక్ష. రామాంజనేయులు చెప్. నెక్స్ట్ అంబేద్కర్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ రామాంజనేయులు. Sir, good morning. I am Dr. Ambedkar, BJP State Secretary, working under the esteemed leadership of Dr. Iska Sunil Kumar. Recently, I contested MLA from Pratipadu constituency, sir. Sir, I would like to. Hello. बोलिए. Sir, I would like to carry out a few things to you, sir. Because, sir, here the regional parties,
they are announcing the larger scale of the schemes to attract the SC communities, sir. In Andhra Pradesh, there are two dominant communities comes under SC category. That is one Mala and Madiga community. The regional parties, they're announcing schemes for these people and turning them into the vote bank to their parties. Earlier, TDP and the YSRCP did the same thing, sir. Here we observed, because the SC population is higher among all populations in Andhra Pradesh. So you please you advise us how to turn these SCs and STs in vote bank towards our party, sir. देखिएगा, इसमें एक विचार आपको मैं देता हूँ सर। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग पूरे देश में रहता है ना, माला हो या मादिका हो, नाम अलग अलग है। सभी माला मादिका पूरे हिंदुस्तान में ही रहते हैं, नाम अलग अलग है। हम राष्ट्रीय पूरे देश में रहते हैं, तो हमारी समस्या भी नेशनली हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम भी नेशनली हैं। इसलिए अगर हमको राइज करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें नेशनल पार्टी को ही वोट देना चाहिए। हमारे विचार में नेशनल पार्टी होनी चाहिए। जब हम रीजनल पार्टी के साथ में जुड़ जाते हैं और रीजनल बातें करते हैं, तो हमारी समस्या नेशनल वाली खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमें नेशनल पार्टी के साथ जुड़े। जो लोकल पार्टी है वो हमें लड़ाती हैं। माला मादिका में कोई फर्क नहीं है, संघर्ष की दिशा बदल दी है आपके यहाँ पर क्या होता है, जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं वो जगजीवन राम को भी मानते हैं, जो जगजीवन राम को मानते हैं अम्बेडकर को भी मानते हैं। आपके यहाँ वो सारा कुछ डिफरेंस कर दिया कि भाई जगजीवन राम वाले अलग हैं, अम्बेडकर वाले अलग हैं, खाली वोट बैंक के लिए किया गया है वो। जबकि जगजीवन राम की लड़ाई हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई हो, संत रविदास जी की लड़ाई हो, महर्षि वाल्मीकि जी की लड़ाई हो, कबीर जी की लड़ाई हो, सबकी लड़ाई समानता के लिए है, बराबर के लिए है, और सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। 15% आरक्षण पूरा होना चाहिए, उसके लिए हमारी लड़ाई पहले होनी चाहिए। क्या हम अपने समाज के लोगों को बता सकते हैं क्या कि आज तक नौकरियां जो मिली हैं उसमें क्या 15% हमारे लोग हैं? क्या डॉक्टर 15% हैं? क्या IAS 15% है? क्या कहीं पे सेक्रेटरी 15% है? क्या गवर्नर 15% है? क्या जब हम वो पूरा ही नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। पहले हमें अपने आप को एजुकेटेड होकर मिलकर उस लड़ाई को पूरा करना चाहिए। థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ రామానుజులు గుంతకల్లు వారికి మీరు కొద్దిగా అనువాదం చేయండి అధ్యక్ష. చెప్పండి అధ్యక్ష, మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలలోన దళితులపై ఎక్కువగా దాడులు జరుగుతున్నాయి. వాటిపైన మన పార్టీ స్టాండ్ కొద్దిగా వాటి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా మనం చేయాలి. తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు దళితులపై దాడులు జరిగినా కానీ పట్టించుకోకుండా ఉండడము వల్ల దళితులకు సంబంధించినటువంటి ఏ హక్కులు కూడా లేకోకుండా పోవడము, స్వతంత్రంగా లేకోకుండా ఉండడము జరుగుతున్నది. ఈ ఎక్కువగా మన దళితుల మీద ఎంఐఎం సంబంధించిన కానీ ముస్లింస్ వాళ్ళు ఎక్కువగా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఈ విషయం మీద రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వాలు అసలు కనీసం ఇంత కూడా దళితులపై జాలి చూపుకోకుండా కేసులు కూడా నిర్వహణ ఎక్కువగా చేస్తున్నాయి. వాటిపై మనము మన భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా మంచి స్టాండ్ తీసుకొని నిందితులకు సరైనటువంటి శిక్షలు పడే విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం అధ్యక్ష. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర జాతీయ అధ్యక్షుల వారు చెప్పండి అధ్యక్ష. सर वीरांजनेय का क्वेश्चन यह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोनों राज्य में जो दलितों के ऊपर अत्याचार और पूरा ये ऐसी घटनाएं बहुत हो रहे सर। और आजकल MIM का भी एक रेप का केस, अपना दलित का महिला को रेप करे तो भी आज तक कुछ पूछने वाले नहीं है। तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रहे सर तेलुगु स्टेट में, बोल तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये जो राज्य है रीजनल पार्टीज जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, दलित लोगों का जो भी दाढ़ी हो रहे हैं पूरा हो रहे उसमें केयर नहीं कर रहे। उसके लिए आपका सूचना कुछ मांग रहे सर। आपके तेलंगाना से रामलू को हमने आयोग में मेंबर बनाया SC कमीशन के अंदर। हाँ सर, रामलू पहले आंध्रा और तेलंगाना एक था सर, तो तब वो प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसको आयोग में बनाया है।
ये हमने वहां से उनको लिया, साउथ से हमने मुरुगन को लिया। इसी कारण यही था कि साउथ के अंदर शुल्क बहुत ज्यादा रहता है और उस पर अत्याचार होता है। सरकार हमारी है नहीं, ना आवाज उठाने वाला कोई है, इसलिए स्पेशल हमने 2-3 लोग उस साइड से अब रखे थे। उसका कारण ही यही था। तो ऐसी कोई बात होती तो हमारा आयोग है, आयोग में हमारे हाथ में, आप बताइएगा, वो जाएंगे एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमने काफी जगह, हमने केरल के अंदर भी, मैं केरल भी गया था, मैं तेलंगाना भी एक बार होके आया हूँ, मैं सभी जगह होके आया हूँ तकरीबन सभी, और आयोग वालों को बोलता भी रहता हूँ जाओ। इसके लिए बरोबर कहने से काम नहीं बनेगा, आपको संघर्ष के लिए आगे अम्बेडकर बनना पड़ेगा। आप बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, लड़िएगा, करिएगा तो उसका परिणाम निकल जाएगा। हम सोचे कि हम अगर कहते हैं तो अत्याचार हो रहा है, सरकार करेगी, सरकार क्या करेगी? सरकार ने कोई करना है। जब ये लोकतंत्र है, जहाँ भीड़ होती है उसके बाद न्याय होता है। వీరాంజనేయులు గారు, ఇప్పుడు ఈ 2 రాష్ట్రాలు కలిపి మనము రాములు మన 2 రాష్ట్రాలు కలిపి రాములు గారిని, తమిళనాడు నుంచి మురుగన్ గారిని ఇట్లా ఎస్సీ కమిషన్ లో వేయడమైంది. ఎందుకంటే ఇలా వేయడం వల్ల వీళ్ళొక దళితుల మీద జరిగే అత్యాచారాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా నివారించడానికి వాళ్ళు ఒక మనకు, ఎందుకంటే ఎస్సీ కమిషన్ మన చేతిలో ఉంది, మన ప్రభుత్వంలో ఉంది. మీరు ఇమ్మీడియట్ గా పోండి, వాళ్ళతో పోయి మీరు నివేదించండి, వాళ్ళతో ఎఫ్ఐఆర్ దర్జీ చేయండి, ప్లస్ మిగిలిన పనులు కూడా వాళ్ళతో చేపించుకోండి. దానివల్లే వాళ్ళని కూడా నియమించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, మంచిది అధ్యక్ష. ఓకే, జేసుదాస్ सुनील साहब, सुनील साहब को बहुत धन्यवाद है। आपको देखने में बहुत खुशी है, आपसे बात करने के लिए मौका मिला और खुशी है और आनंद है और धन्यवाद भी है सब। हम टाउन प्रेसिडेंट है मोर्चा को, हमारा तरफ से एक छोटा सवाल है साहब, पूछ सकता है? पूछो। आप शेड्यूल कास्ट सी ग्रुप है, बैकवर्ड क्लास में भी सी ग्रुप है। बहुत साल से हम इंडिया में बहुत साल से एक डिमांड है ये बीसीसी को एससीसी में मिलाना बोल, मगर अभी तक हुआ नहीं। बहुत साल से, मतलब मेरे को मालूम है भी ये डिमांड ऐसी पड़ा है, मगर कोई कुछ मिला भी नहीं, कुछ मिलने का भी नहीं। और सब और क्या है, अम्बेडकर का जमाना से 1% बीसीसी को रिजर्वेशन दिया, अभी भी वही चलता है, कुछ इसमें कुछ फर्क नहीं, कुछ बदले हुआ नहीं। मगर हमारा सूचना क्या है साहब, इसमें और बीसीसी को रिजर्वेशन 4% नहीं तो 5% को बढ़ा दिया तो ये एससीसी में मिलाने के लिए जरूरत नहीं बोल के हमारा सूचना है साहब। और क्या है, ये मिलाने के लिए कुछ आजकल अपना गवर्नमेंट आने के बाद कोई बात करने वाले भी नहीं, इसमें पार्लियामेंट में भी हो नहीं तो बाहर भी हो सब, इसलिए वो हमारा दुष्यंत कुमार साहब को पूछा है, इसमें उसका सूचना क्या है, उसका एडवाइस क्या है, तो कुछ बोलेगा तो हम सुनने के लिए तैयार है साहब। हाँ साहब, बीसीसी क्या है बीसीसी? बीसीसी क्या है? बैकवर्ड कमीशन क्या है? सर कन्वर्टेड क्रिश्चियन सर, कन्वर्टेड क्रिश्चियन, दलित क्रिश्चियंस को शेड्यूल कास्ट में मिलाना के इसको बोलने का मतलब है कि दलित क्रिश्चियंस को एससी में डाल सकते हैं या नहीं है? एक मिनट बात सुनिएगा। जब वो क्रिश्चियन बने थे, ये कहकर बने थे कि क्रिश्चियनों में छुआछूत नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम क्रिश्चियन बन रहे हैं। और उनके घरों के अंदर ना तो डॉक्टर अंबेडकर का चित्र होता है, ना वाल्मीकि का होता है, ना रविदास का होता है, किसी का भी चित्र नहीं होता। लाभ लेने के लिए वो दलित होते हैं और पूछते वो ईसाई को हैं। जब उनमें छुआछूत, देखो आरक्षण का मेल जो सेंटर पॉइंट है, जो मुद्दा है, वो अनटचेबिलिटी है, और क्रिश्चियन कहते हैं हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, तो वो फिर काय का आरक्षण? अगर उनको लगता है वहाँ अनटचेबिलिटी है तो वापस आ जाओ आप हिंदू धर्म के अंदर, आप हिंदू धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी, आपको आरक्षण मिल जाएगा। थैंक यू सर। अभी 12:30 हो गया सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत
अमूल्य समय लेके हमारे पास आके विच इज लाइव లో ఉన్నాను रिकॉर्ड 130 मेंबर्स 130 जने आए सर हमारे पास आपके भाषण सुने और यही नहीं है और ये पूरा फेसबुक में भी लाइव में गया सर ऑलमोस्ट 12,000 तक अभी आपका स्पीच आपका अमूल्य स्पीच सुना है सर वी आर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सर अध्यक्ष थैंक यू इसके फोटोग्राफ भेजना मेरे को पूरा दे दूंगा सर इसके रिकॉर्ड फोटो भेजना। ठीक है सर थैंक यू भारत माता की जय